Thank you. Welcome, everyone. Greetings from NHFW and MHOW. Good evening, namaskar. Welcome to the session 2, Infection Prevention and Control and Wound Management of this just-in-time training webinar series on public health preparedness and response, organized by the National Institute of Health and Family Welfare, Government of India, under Ministry of Health and Family Welfare. I am Dr. Rajiv Sharma, and I'm here to facilitate today's session. This series is designed to equip first responders, frontline healthcare workers, and community volunteers with critical skills to respond effectively in crisis and emergency situations. Today's topic is also focused in similar lines. We are here honored with today's speaker, Dr. Renu Sherawat and Dr. Gitanjali Singh, distinguished expert from NHFW and bring extensive experience in IPC and clinical management. The session structure is, this session will last for 60 minutes. The speaker will see how much time left for question and answer at end of the session. And I will request both the speakers, please keep some time so that we can address any comments or any questions from all the participants. The housekeeping is that please use your chat box for questions or comments, and we will try to address as much as possible. And accordingly, speakers will address all those queries. And feel free to participate in that question and answer. This session is being recorded and will be available afterward along with resources like handouts or any other means. Now, I will further any delay, I will request both the speakers. Please, let's dive into today's topic. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Rajiv, and welcome all the participants. Am I audible? Are we audible? Yes, you're audible. Okay. So today we'll be presenting on this very important topic of infection prevention and wound management. With me, my co-presenter, Dr. Gitanjali Singh, is there. And Gitanjali, can we go directly to the our slide presentation? Yes, sure. We will also. I'll just make the. Till the time, ma'am, you can tell them how are we going to present. Yes. In the meanwhile, the Dr. Gitanjali is going to share the presentation. I would like to apprise you that this presentation will be organized in 3 sections. So in section 1, we will be talking about infection prevention practices before a procedure. See, whenever we are doing in the healthcare settings, we need to practice infection prevention practices in our day-to-day routine patient care, as well as conducting some procedures, minor or major. So that is a critical step. So this will be followed by a procedure where in this we are taking the example of wound management, and this will be followed by post-procedure infection prevention practices and biomedical waste management. So this will complete the whole picture. And now I have shared the screen and I hope the slides are visible and they are changing. Dr. Rajiv, can you just let us know if the slides are visible and changing? No, ma'am. You need to slideshow, ma'am. You need to click on infection prevention and presentation. And then I have done that. ma'am, you just need to double click on that. Now it is fine, ma'am. You just need to do slideshow from beginning and then it's fine, ma'am. So now it is visible? Yes, ma'am. It is visible. You just need to do slideshow. Slideshow from current slide, then it is fine, ma'am. Okay. Yes. Now done? Yes, ma'am. Now it is absolutely fine. Thank you, ma'am. It is visible now. Thank you. So thank you, Gitanjali. And now we can proceed. I think we have got 2 topics
rolled into one. So we'll be quickly going into this so that we can comprehensively cover all the content material. Like I said, this presentation is organized into 3 sections. First, we'll be talking about infection prevention principles and practices before a procedure. See, we are dealing in our day-to-day practices, dealing with the patient, and we see that infections are a major challenge and a hazard in the healthcare settings. So why we need to prevent infections? The objective is that we want to prevent the occurrence and minimize the risk of transmitting infections such as hepatitis B, hepatitis C, and HIV/AIDS to clients and healthcare staff while providing services. See, these are the 3 viruses which are transmitted. Their rate of transmission is very high. So whether the patient or the healthcare staff, if they directly come in contact with the blood care products or bodily secretions, their risk of transmission is very, very high. जी मैम, जैसा आपने कहा, तो यानी कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन हम दोनों के लिए ही जरूरी है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज वेल एज द पेशेंट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए समझना, क्योंकि हमें भी बचाएगा और ये हमारे पेशेंट्स को भी बचाएगा। थैंक यू गीतांजलि, इसको सम अप करने के लिए। अब जहां तक कि हमें बात करनी है कि हमें इन्फेक्शंस को क्यों प्रिवेंट करना चाहिए, उसमें पहले आता है कि हमको जो भी प्रोसीजर, चाहे छोटे से छोटे या बड़े से बड़ा, इवन अगर आपका कोई इंसिजन को आप स्टिच कर रहे हैं या कोई बड़ा प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई डिलीवरी हो रही है या कोई कट को आप वुंड को आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर उसका डिब्राइडमेंट या कोई कर रहे हैं, तो उसके बाद भी पोस्ट प्रोसीजर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। क्योंकि जो हमारे स्किन पे बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आ सकता है, हमारे इन्फेक्टेड इक्विपमेंट से ऑर्गेनिजम्स हमारे क्लीन सर्जिकल साइट में उनको एक्सेस मिल सकती है, उससे हमारे जो प्रोसीजर साइट पे इन्फेक्शन हो सकता है। उससे क्या होगा कि एक तो पेशेंट को मॉर्बिडिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन होगा, उससे लॉन्ग हॉस्पिटल स्टे हो सकता है, दवाइयों का खर्चा ज्यादा आ सकता है। इन सब को हमने प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए इन्फेक्शन प्रिवेंशन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा यह है कि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और बाकी का हेल्थ केयर हाउसकीपिंग स्टाफ है, उनको भी हमें इन्फेक्शन से बचाना है। ये उनके लिए एक तरह से उनके काम का एक हैजर्ड है, जिसे हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बोलते हैं, कि वो अपने डे टू डे काम कार्य के क्षेत्र में उनका बार बार एक्सपोजर होता है। तो अगर हम प्रॉपर इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, तो हम उनके अंदर भी इस इन्फेक्शन को जाने से रोक सकते हैं। तीसरा क्या है कि जब जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हमें पता है कि इन्फेक्टेड मटेरियल होता है, पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां से इन्फेक्शन हमारी जनरल कम्युनिटी को भी जा सकता है। तो उसी तरह हमने उस कम्युनिटी को भी बचाना है, जो आसपास के हेल्दी लोग जो हमारे आसपास जो रह रहे हैं, उनको भी इन्फेक्शन गेन करने से हमें बचाना है। और जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, हमारे जब हम बात करते हैं तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर को भी कम करता है। जैसे कि हमने सबने सुना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही प्रिंसिपल इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे भी लागू होता है। अब जैसे कि हम देखना चाहेंगे कि इन्फेक्शन कैसे होता है, तो अगर आप देखेंगे कि चेन की तरह दिख रहा है, एजेंट क्या है, अगर आप देखेंगे इस तस्वीर के ऊपर के राइट हैंड साइड में ऊपर के हिस्से में एजेंट लिखा है। वो एजेंट क्या है, वो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो फंगस भी हो सकती है। वो एजेंट एक रिजर्वायर में चला जाता है। रिजर्वायर का मतलब है कि वो उस इन्फेक्शियस एजेंट को मेंटेन करता है, तो उसमें वो पलता फलता बढ़ता है। और उस रिजर्वायर से जब वो निकलता है तो अलग अलग तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, वो चाहे ब्लड के थ्रू हो, वो आपके सांस के थ्रू हो, बॉडीली सिक्रीशंस के थ्रू हो, या कोई इन्फेक्टेड मटेरियल जो की यूज हुआ उसके थ्रू एक ससेप्टेबल होस्ट में जा सकते हैं। तो अब उस तरह से ये पूरा चेन मेंटेन होती है। तो क्योंकि इन्फेक्शन की पूरी चेन बनी हुई है, तो क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं? तो इस पूरी चेन को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। और वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का स्टेप हमें ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स टू ससेप्टेबल होस्ट को जाने से रोकने में मदद करता है। अगर हम इस स्टेप को इफेक्टिवली अच्छे से कर लेते हैं, तो हम उस पूरी चेन ऑफ इन्फेक्शन को तोड़ सकते हैं
रोक सकते हैं। जैसा पता हमें समझ में आया कि मतलब कितना सिंपल स्टेप है, सिर्फ अगर हम इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को अगर हम रोक लेते हैं तो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, सब विदाउट गिविंग एनी इन्फेक्शन। के लिए हमें कोई एंटी माइक्रोबियल्स नहीं देने पड़ेंगे, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं देने पड़ेंगे। और अभी हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में कि कितना सिंपल है इस चीज को करना, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ हमारी इंटेंशन होनी चाहिए कि हमें ये करना है और हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे करना है। तो यही हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो देखिए कितना सिंपल है ये, और हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे इसे। अभी जैसे कि हमें इन्फेक्शन का तो पता चल गया, लेकिन अभी हमें ये भी जानने की जरूरत है कि इन्फेक्शन कहाँ से आ सकता है। तो उन सोर्सेज के बारे में जानने के लिए, जैसे वो कौन हो सकते हैं, वो हमारे हेल्थ केयर सेटअप में चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनमें से कोई भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरे पेशेंट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में है वो भी दूसरे पेशेंट्स को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तीसरे, जो कम्युनिटी से जो हमारे जो कि हेल्दी लोग दिखते हैं, कि ऊपर से देखने में तो हेल्दी लगते हैं, लेकिन कई बार वो किसी इन्फेक्शन के लिए कैरियर्स हो सकते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी के कैरियर्स हो सकते हैं। वो देखने में हेल्दी लगते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन किसी दूसरे को ट्रांसमिट करने में सक्षम होते हैं। तीसरा है कि जो एनवायरमेंट जहाँ पे मरीज को रखा गया है, या जहाँ पे जो भी हमारा एनवायरमेंट है जिसके अंदर हम सब काम कर रहे हैं, वो ब्लड हो, बॉडी फ्लूइड्स हो, सिक्रीशंस हैं, या कोई एक्सक्रीशन लाइक यूरिन हुआ, स्टूल हुआ, ये सब एक पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। चौथा ये है कि हम जब भी हेल्थ केयर में अपनी सर्विसेज प्रदान करते हैं तो हमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, और उन इक्विपमेंट्स भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं अगर उनको हमने प्रॉपरली डिकॉन्टेमिनेट, डिसइंफेक्ट और स्टेरलाइज न किया हो तो। अब जहां तक कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन की बात आती है, हम बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना चाहेंगे कि जब हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात करनी है तो प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये मानना है कि जो भी वस्तुएं मरीज के या जिसको भी आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी में हो, हेल्थ फैसिलिटी से बाहर कम्युनिटी में हो, चाहे कोई भी हो, जिनको भी आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स या वस्तुएं उस व्यक्ति के सीधे कांटेक्ट में आती हैं, उनको हमें मानना है कि वो पोटेंशियली कंटेमिनेटेड हैं, यानी कि वो कंटेमिनेशन से संभावित वस्तुएं हैं। तो ये एक हमारा बेसिक प्रिंसिपल 1 है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि हर व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति कौन हो सकता है, वो कम्युनिटी का मेंबर हो सकता है, वो कोई दूसरा पेशेंट हो सकता है, वो कोई हेल्थ केयर स्टाफ हो सकता है, यानी कि पेशेंट के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति, उसको पोटेंशियली इन्फेक्शियस यानी कि संभावित इन्फेक्शियस माना जाना चाहिए। तो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यह है। तीसरी बात यह है कि जो चीजें हम हेल्थ केयर फैसिलिटी में, जो भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, उनके उपयोग के बाद उनको हमें डिस्पोज करना, यानी कि उनको हमने हटाना है। लेकिन हटाने का प्रिंसिपल ये नहीं कि हम उसके कूड़े कचरे में फेंक दें। इसका मतलब ये है कि हमारे बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से उस वेस्ट की तरह हमने उसको अप्रोप्रिएटली डिस्कार्ड करना है। और इसी के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस एंड रूल्स बने हुए हैं। अगर वो वस्तु रीयूजेबल है तो उसके फर्दर ट्रांसमिशन को हमने कैसे प्रिवेंट करना है, कि यानी हमने कोई चीज यूज की और उसको हमने दोबारा यूज करना है अगले मरीज के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके ट्रांसमिशन ऑफ जो कि पोटेंशियल इन्फेक्टिव एजेंट पिछले मरीज से हो सकता आया हुआ है और वो दूसरे मरीज तक ना पहुंचे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम प्रोसेस करते हैं जिसमें हम करते हैं डिकॉन्टेमिनेशन, क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन, जिसके बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में बाद में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत कितने ही सुंदर तरीके से मैम ने बताया है कि क्या प्रिंसिपल्स है प्रिवेंशन के। और जैसा कि हम जान सकते हैं, हमारे को नॉलेज और हमारी इंटेंशन बहुत जरूरी है कि हम वो करना चाहें, क्योंकि ये सिंपल स्टेप हम आपको और हमारे पूरे समाज को बचाने के लिए बहुत कारगर है। और इसी पॉइंट पे मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हम सब इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस वेबिनार के माध्यम से NIHFW को चुना सुनने के लिए। आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो हम एंड में ले लेंगे आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेमिनार, वेबिनार।
तो अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहां से हम समय रहते हुए आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। तो अभी आप पूरा ध्यान लगाएं वेबिनार को सुनने में। आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक की ट्रांसमिशन की बात हुई थी, तो हमने बोला था कि एक से दूसरे तक ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये देखा गया है कि कांटेक्ट यानी कि डायरेक्ट किसी भी चीज के डायरेक्ट छूने से वो ट्रांसमिशन की जो है ना, हमें देखा है कि वो सबसे कॉमन तरीका है। और वो कांटेक्ट किस तरह से हो सकता है? वो बॉडी के साथ, बॉडी मान लो किसी पेशेंट का ब्लड है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है दूसरे हेल्थ केयर वर्कर से या किसी कम्युनिटी पर्सन से या दूसरे पेशेंट से, उसके ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, या बॉडी फ्लूइड्स या सिक्रीशंस, बॉडीली सिक्रीशंस का, तो उसके थ्रू आपका इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और जो ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह का हो सकता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक पेशेंट को एक्सपोजर हुआ दूसरे पेशेंट के इन्फेक्टेड मटेरियल से। जैसे कि आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं और आपको नीडल प्रिक हो गया और दूसरा पेशेंट इन्फेक्टेड था, तो उसके ब्लड में जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो मौजूद है, वो पिन प्रिक के थ्रू, नीडल प्रिक के थ्रू, जिसको प्रिक लग रहा है उसकी बॉडी में डायरेक्टली प्रवेश करने का उसका चांस बन सकता है। दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक एजेंट होता है, वो कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो आपके इक्विपमेंट्स हो, वो आपका लिनन हो, या कोई और वस्तुएं हैं जो हेल्थ केयर फैसिलिटी में यूज हुई या हो रही है, या हो सकता है पर्सन। पर्सन कैसे होगा? मान लो कि कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसने पहले एक मरीज देखा, उसने देखने के बाद उसने अपने हैंड्स वॉश नहीं किए, उसने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए थे, सीधा जाकर उसने दूसरे मरीज को देखना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या होगा, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक पेशेंट से इन्फेक्शन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। और इन्हीं चीजों को समझते हुए हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हमने इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करना है। अब जहां तक कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन की बात आती है, हमें एक याद रखना है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति हो, हमें कुछ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हर स्थिति में, हर जगह, हर व्यक्ति को यूज करनी है। और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या आता है? सबसे पहले हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है और सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड भी देखा गया है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हैंड वॉशिंग से क्या होता है, लेकिन यही सबसे क्रूशियल स्टेप है जो कि हमें करना चाहिए। जहां तक कि हैंड वॉशिंग की बात है, हैंड वॉशिंग सोप एंड वाटर से करिए। दूसरा क्या होता है कि आप अल्कोहल जो आते हैं, स्क्रब्स आते हैं, रब्स आते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि सपोज आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में नहीं है, आप कहीं बाहर कम्युनिटी में, और आपको किसी को आपने कुछ असिस्टेंस देनी पड़ गई और आपके पास सोप नहीं है, तो इवन अगर आप सिंपल वाटर से भी हाथ धोते हैं, यह देखा गया है कि अगर आप पानी से केवल अपने हाथ धोते हैं तो लगभग 50% जीवाणुओं में कमी आती है। उसके पश्चात यह भी देखा गया है कि अगर आप सोप के साथ धोते हैं तो 80% जो भी जीवाणु आपके हाथ पे मौजूद हैं उनकी संख्या में कमी आती है। तो आप समझ सकते हैं कि सिंपल प्रोसीजर्स कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यूज ऑफ प्रोटेक्टिव अटायर, हम सब जानते हैं इसके बारे में। इस प्रोटेक्टिव अटायर में आता है, आपके ग्लव्स आते हैं, आपका एप्रिन आता है, आपका मास्क आता है, कैप, शू कवर्स, ये सब चीजें। तो यानी कि जैसी स्थिति है, जिस जगह आप दे रहे हैं, जहाँ जिसकी जरूरत है, उस हिसाब से हम अपना प्रोटेक्टिव अटायर भी पहनेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग ऑफ यूज्ड आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स। यानी कि जब एक इक्विपमेंट को यूज किया है तो उसका क्या हुआ है, या तो बॉडी के ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता आया हो, ब्लड के कांटेक्ट में ना आया तो बॉडीली सिक्रीशन हो सकता है, सलाइवा हो सकता है यूरिन हो, या कोई और बॉडी फ्लूइड्स हो, उसके कांटेक्ट में वो आया हो सकता है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, जो भी यूज्ड इक्विपमेंट है उसको हमें प्रॉपरली प्रोसेस करना है। चौथा क्या है, प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प्स। शार्प्स का देखा गया है कि वो सबसे ज्यादा कारण है हेल्थ केयर सेटअप में इंजरीज के लिए। तो जो जितनी इंजरीज होती हैं हेल्थ केयर वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग में, उसमें सबसे ज्यादा रिस्क हैंडलिंग ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प्स का रहता है। तो जितने भी शार्प्स है, चाहे वो आपके नीडल्स है या ब्रोकन वॉयल्स हैं या आपके स्कैल्पल हैं, उनका प्रॉपर, उनकी हैंडलिंग और उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए।
पांचवा है मेंटेनिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट, आपके लिनन, आपका फ्लोर, ये सब सब जो है ना आपको देखना है कि टोटली क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन हो ताकि उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म पनप ना पाए। छठा इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है कि जो वेस्ट आपके यहाँ जनरेट हो रहा है, चाहे वो आपका स्वाब्स हो या कोई टिश्यू हो, वो इस तरह के जितना भी जो हेल्थ केयर में वेस्ट जनरेट होता है उसको हमने नाम दिया है बायोमेडिकल वेस्ट। यानी कि वो वेस्ट है लेकिन वो जनरल वेस्ट नहीं है, वो बायोमेडिकल आपके हेल्थ केयर एक बायोलॉजिकल एंटिटी, या हमारे बायोलॉजिकल एंटिटी या हमारे यहाँ कौन है, व्यक्ति है, हमारा पेशेंट है, उससे वो वेस्ट जनरेट हुआ है, तो उसको एक गाइडलाइंस के तहत उस वेस्ट को हमें डिस्पोज करना चाहिए। अब क्योंकि हमने बेसिक प्रिंसिपल समझ लिए हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन समझ लिए हैं, और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हैंड वॉशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशियल क्रिटिकल स्टेप है, तो उसके बारे में हम समझना चाहेंगे कि कैसे हैंड वॉशिंग हम कर सकते हैं। तब जैसे हैंड वॉशिंग की बात आती है, अगर हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी के अंदर कोई अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो हमें क्या करना है कि हमारे पास सोप डिश होनी चाहिए जिसमें कि सोप हो और एक रनिंग वाटर होना चाहिए ताकि हम अपने हाथ को धो सकें, ताकि आपके हैंड्स किसी को टच ना करें। रनिंग वाटर के अंदर ही आपके हैंड्स धुलने चाहिए। और धोने के बाद ड्राई करने के लिए या तो आपके पास टॉवल हो, क्लीन टॉवल जो कि शेयर्ड ना हो, सिर्फ आप ही यूज करें, और अगर वो भी पॉसिबल ना हो तो हवा में ही अपने हाथों को ड्राई करने की कोशिश करें। अगर आप हैंड हाइजीन के लिए अल्कोहल बेस्ड किसी उसका रब की जरूरत इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे आपको पानी की जरूरत नहीं होती, उसको आप हाथ पे लेके दोनों हाथों के बीच में आप रगड़ सकते हैं और वो अपने आप ही उड़ जाता है, यानी कि उसमें आपको ड्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही उड़ जाता है। चौथा ये है कि जब भी आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं आप देखिएगा कि आपके नेल्स जो है ना वो कटे हुए हों, छोटे हों, क्योंकि बहुत सारी गंदगी हमारे नेल्स के नीचे जम जाती है और वो फिर एक ऐसी जगह है कि जिसको साफ करना मुश्किल भी हो तो सकता मैम है। रनिंग वाटर से आपको मतलब है यहाँ पे कि जो टैप से पानी निकल रहा है उसके नीचे हम हाथ धोएं तो जी वो रनिंग वाटर है। जी। तो अगर मैम अगर कोई फैसिलिटी है कि वहां पे रनिंग वाटर नहीं आता है, कुछ समय के लिए ये सिर्फ वहाँ बकेट ही है, तब हम उस स्थिति में कैसे हम रनिंग वाटर इंश्योर करें? उस स्थिति में ये होगा कि हमें एक दूसरे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी जो कि आपके लिए पानी डाल सके ऊपर से, और आप स्वयं उस पानी को ना डालें। ठीक। अब देखना है कि हमें हैंड वॉशिंग करनी कैसे है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने अपनी जो भी बाजुएं हैं सब हमने अपनी कोहनी से ऊपर उनको रोल अप कर लेना है सब, यानी कि उसके नीचे हमारी कोई भी वस्त्र नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि हाथ में कुछ भी पहना हो, चाहे वो आपकी घड़ी हो, रिंग्स हो, चाहे आपकी चूड़ियां हो, या कुछ भी जो आपके हाथ में है आपको उसको उतार देना है। मैम ये रिलीजियस बैंड जैसा जो है क्या इसको भी करना चाहिए? इसको भी उतारना चाहिए, यानी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि अपने हाथ को जब वॉश करते हैं तो कितने समय तक, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो बोला गया है कि मिनिमम 1 मिनट जब हम प्रॉपरली अपने हाथ को, क्योंकि कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो कि आगे के हम वीडियो में देखने वाले भी हैं, उनको अगर हम प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमें लगभग 1 मिनट का समय लगता है। तो हम उसको जल्दी से हाथ धो के हम उसको ये ना माने कि हमने हाथ धो लिए हैं, यानी कि फिर हमें क्या करना है, हमें हर स्टेप को फॉलो करना है और 1 मिनट तक लगभग हमें सोप और वाटर से अपने हाथ को साफ करना है, तभी हम कहेंगे कि हमारी प्रॉपर हैंड वॉशिंग हुई है। और उसके बाद यह है कि जब हमने अपने हैंड वॉश कर लिए तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हैंड वॉश करने के बाद हमने किसी भी चीज को टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके हैंड्स अब क्लीन हुए हैं, मैंने ये नहीं कहा कि वो डिसइंफेक्ट या स्टरलाइज हुए, नो, वो आपके हैंड्स अभी क्लीन हुए हैं, और अगर किसी और चीज को छुएंगे तो आपकी सारी वॉशिंग ऑफ हैंड्स बेकार हो सकती है, अब दोबारा से आपके हैंड्स अनक्लीन हो सकते हैं। जी। तो अब जैसा हमने डिस्कस कर लिया है, अभी हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो हैंड वॉशिंग का, जिसमें आपको ये प्रॉपर्ली दिखाएंगे कि स्टेप्स जो आपको बताए हैं 6 स्टेप्स कैसे आपको फॉलो करने हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा।
पहला स्टेप है कि दोनों हाथ की उंगली और हथेलियों को अपने मला। दूसरा स्टेप की सतह पर उंगली बीच में मलना है। तीसरा है मुट्ठी बना करके मलना। चौथा है अंगूठा आपने मला है। पांचवें स्टेप में उंगलियों के सिरों को अपनी हथेली में पीसेस में आपको घुमाना है ताकि ये साफ। छठा है कलाई को भी साफ करना और उसके बाद नीचे रनिंग वाटर में धो लेना है। ये हमें पता चला कि वहां पे वीडियो की आवाज नहीं आ रही थी तो हमने आपको बाद में बताया। तो मेनली एक तो आपके 5 मोमेंट्स है कि कब आपको हैंड वॉश करना है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि मरीज को छूने से पहले, मरीज को छूने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। दूसरा, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर करने के बाद आपको हाथ धोना है। और पांचवा, कभी भी आप मरीज के सराउंडिंग के संपर्क में आ रहे हैं, चाहे आपने रेलिंग छुआ है, चादर छुई है, तकिया छुआ है, कोई भी चीज जो मरीज की सराउंडिंग में उसको छुआ है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट मोमेंट्स है जब आपको जरूर 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 हैंड वॉश करना ही करना है इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हैंड वॉश तो हमने कवर किया, मैम आप जब तक कुछ आगे बताएंगे तो मैं अभी क्योंकि हमने बात किया कि प्रोसीजर से पहले इन्फेक्शन प्रिवेंशन के इनिशियल स्टेप्स क्या हो सकते हैं, वो हमने अभी बातचीत की है। अब हम जाएंगे वूंड मैनेजमेंट पे। लेकिन वूंड मैनेजमेंट पे जाने से पहले अभी हमारे हैंड क्लीन हो गए, हमने हाथ धो लिए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? कुछ हमने प्रोटेक्टिव अटायर पहनना है। उस प्रोटेक्टिव अटायर में आता है कि ग्लव्स। तो डिस्पोजल ग्लव्स को कैसे यूज करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी आइटम है जो मैक्सिमम यूज होती है, यूज करनी भी चाहिए, चाहे आप पेशेंट को टच कर रहे हो या कोई प्रोसीजर कर रहे हो। तो प्रॉपर ग्लव्स कैसे पहनने हैं उसके बारे में डॉक्टर गीतांजलि अब आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जैसा हमने कहा कि देखिए, हमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम 1 घंटे में कवर नहीं कर सकते। यहाँ हम सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके लिए प्रैक्टिकली इस समय इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हमने कहा हैंड वॉशिंग कर लिया, आपके पास हैंड्स क्लीन है। और अगर हम वुंड ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं तो मरीज को छूने से पहले आपने हाथ तो धो लिए हैं, आपके हाथ अभी साफ है, लेकिन वो पूरी तरह साफ नहीं। आपको याद होगा, आप लाइफ बॉय का एड देखते हैं टीवी में, जब वो वॉश कर लेते हैं उसके बाद भी वो दिखाते हैं 1-2 बैक्टीरिया दिखाते हैं कि वहां पे है। तो आपको टच बेयर हैंड से बिल्कुल भी नहीं करना है पेशेंट को, ठीक है, अगर हम वुंड ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं तब। बट अदरवाइज भी बहुत सारे कंडीशंस है जब आपको मरीज को बेयर हैंड से टच नहीं करना है, जो हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे हम उन ग्लव्स को पहने और उतारें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ इन्फेक्शन प्रिवेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कैप, मास्क, एप्रन इन सब की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ग्लव्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है, ग्लव्स आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर हैंड वॉशिंग। हाथ तो आपको धोने ही धोने हैं। ऐसा नहीं है आपने सोचा आए मैं तो ग्लव पहन लिया ना, साफ है, स्टेराइल अलाउ में आप इसको प्रोसीजर कर सकता, नहीं। यू हैव ऑलवेज टू हैव टू हैंड वॉश यूजिंग द 6 स्टेप्स जो आपको बताया प्रॉपर्ली 60 सेकेंड्स के लिए। दूसरी बात, आपके हाथ में छोटा मोटा कट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमेशा वाटर प्रूफ ड्रेसिंग से कवर कर लेना चाहिए एंड देन आपको ग्लव्स को वेयर करना चाहिए, क्योंकि कई बार माइक्रो कट्स होते हैं ग्लव्स में जिसके थ्रू कुछ भी सीप इन कर सकता है और आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा है, ये याद रखिए कि ग्लव्स आर अ सिंगल यूज आइटम। आपको उनको इस्तेमाल करने के बाद में डिस्पोज कर देना है। ऐसा नहीं कि उसको पहन करके आप सारे काम करे जा रहे हैं। तो आपने जिस कार्य के लिए उस ग्लव को पहना था, उसे पहनने के तुरंत बाद उसको आपको डिस्पोज करना है। वो भी हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ग्लव्स को उतारना है और उनको कहाँ पे डिस्पोज करना है, बिकॉज उतार के ऐसे फेंक नहीं देना है। जैसा मैम ने आपको कहा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि हम न सिर्फ अपनी सुरक्षा बल्कि अपने मरीज की सुरक्षा और अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए हमें एक बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से उसको हमें करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये जो बहुत देखा गया है कि एक बार ग्लव पहन लिया बस अब हम सारा काम उसी से करे जा रहे हैं। आपको 2 प्रोसीजर्स के बीच में ग्लव को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा मैंने ग्लव पहन लिया, अब ये काम कर लिया, ठीक है लाओ मैं हैंड रब करके इसी को पहन के दूसरा काम कर लेता हूँ, नहीं। यू हैव टू चेंज द ग्लव्स इन बिटवीन द एक्टिविटीज। और जब आपने सारा कार्य कर लिया, अपने ग्लव उतार करके, जैसे हमने बताया उस प्रोसीजर से उतार के आपने उनको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड कर दिया, अब इन हाथों को आपको अगर आगे कुछ और काम नहीं करना है, अगर 2 क्लीन प्रोसीजर्स के बीच में है तो आपके हाथ साफ ही थे, तो आप उनको डिकंटामिनेट कर सकते हैं यूजिंग द हैंड रब, जिसके लिए भी सेम स्टेप्स रहते हैं जो कि आपने हैंड वॉशिंग में यूज किया था, सेम 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए। बट अगर आपका काम अब खत्म हो गया, अब आपको ग्लव का कोई और काम बाकी नहीं है, तो आपको हैंड वॉश करने हैं अगेन यूजिंग द सेम 6 स्टेप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लव को पहनने कब कब, ठीक है, जब भी आप एंटीसिपेट, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ डीपी लेना है माना मैम का, तो मुझे ग्लव की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा टच नहीं होने वाला। ये इंपॉर्टेंट इसलिए जानना क्योंकि ग्लव्स और स्टेराइल ग्लव्स और अनस्टेराइल ग्लव्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी, हमें इन्हें वेस्ट नहीं करना है। तो जहां जरूरत है सिर्फ हमें वहां पहनना है।
इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें चाहिए कहाँ पे ग्लव पहनना। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपका हाथ संपर्क में आ सकता है या तो खून से या फिर किसी और बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आ सकता है, तब आपको ग्लव जरूर 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 पहनना है। या फिर आपको लगता है कि कोई भी केमिकल हैजर्ड आपके टच में आ सकता है, मे बी आप ब्लीचिंग सोल्यूशन बना रहे हैं या कोई केमिकल के साथ में आप काम करने जा रहे हैं, तो भी आपको अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के ग्लव जरूर पहनना है। चार्ट्स को हैंडल आप कर रहे हैं या फिर कंटेमिनेटेड डिवाइसेस को आप हैंडल कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि काम करने के बाद में हम उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, तो भी आपको ग्लव पहनना है। बेयर हैंड से हम कभी भी टच नहीं करेंगे कोई भी इन्फेक्टेड चीजों को, ठीक है। चौथा है, जो हम कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, एसेप्टिक नो टच टेक्निक वाला प्रोसीजर, यानी जैसे हम वुंड ड्रेसिंग की बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हमें वुंड ड्रेसिंग करनी है, एसेप्टिक प्रोसीजर है, तब भी हमें ग्लव्स को पहनना है। फिर आपको रिमूव कब करनी है, अगर आपको दिखता है आपने ग्लव पहन लिया लेकिन आपको देखा वहां कटा फटा है, तो आपको उसको तुरंत रिमूव करना है और आपको हैंड को डिकंटामिनेट करके दूसरा पेयर ऑफ ग्लव को पहनना पड़ेगा। या फिर आपने इस्तेमाल कर लिया है और उसके बाद में बॉडी फ्लूइड उस पर ज्यादा लग गया है, म्यूकस मेम्ब्रेन से टच हो गया है, तब आपको उसको डिस्कार्ड करना है। 2 पेशेंट्स के बीच में भी आपको जो ग्लव्स चेंज करके और हैंड हाइजीन करने के बाद ही परफॉर्म करना है, और आपने आपका जो प्रोसीजर इंटेंडेड था वो आपने कंप्लीट कर लिया, तब भी आपको ग्लव्स चेंज करने हैं। फिर कहाँ स्टेराइल करने हैं, कहाँ नॉन स्टेराइल करने हैं। तो स्टेराइल ग्लव आपको जब भी आप स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हो, कोई भी नो टच टेक्निक वाला प्रोसीजर कर रहे हो, तब जरूर करना है। बाकी जो आपके सिंगल यूज वाले ग्लव्स हैं, जिनको हमने कहा कि जो आपके नॉन स्टेराइल ग्लव्स हैं, उनको आप इंट्रावीनस इंसर्शन लाइन इंसर्ट कर रहे हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, ब्लड निकाल रहे हैं, या कॉन्टेक्ट विद ब्लड और म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माना आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब रिमूव कर रहे हैं या फिर कैथेटर निकाल रहे हैं, तो वहां पर स्टेराइल ग्लव की जरूरत नहीं, दैट नॉन स्टेराइल ग्लव विल डू। डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ ग्लव्स का वीडियो आप अगर टाइम परमिट करता है तो हम दिखा सकते हैं, तो हम दिखा देते हैं, बट मेरे ख्याल से उसमें फिर से आवाज नहीं आएगी, तो आप ध्यान से स्टेप्स देखिएगा, मैं आपको वॉइस ओवर देती जाऊंगी कि क्या कर रहे हैं इस समय। तो डॉनिंग और डॉफिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सही तरीके से अगर आप पहनेंगे तभी आप स्टेरिलिटी उसकी मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो आपने ग्लव किया है वो साइज आपके हाथ का हो। दूसरा आपको ये देखना है कि जो आपका ग्लव है ये पैकेट कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब स्टेराइल होगा। और इसको आप चेक कर लीजिए, एक्सपायरी डेट है एक्सपायर्ड टू ग्लव। उसके बाद आप इसको ग्लव को बाहर से, क्योंकि ग्लव तो अनस्टेराइल है, अंदर स्टेराइल है, तो आपको ये खोल करके आप हैंड वॉश करने के बाद इसको आप टच नहीं करेंगे, दूसरा व्यक्ति इसको खोल के आपको देगा। तो आपने जब हैंड वॉश कर लिया है तो आपको ये ग्लव का पैकेट नहीं खोलना है, दूसरा व्यक्ति आपको ग्लव का पैकेट खोल करके देगा, और वो ग्लव को भी ऐसे खोलेगा ताकि वो अंदर के सरफेस को टच नहीं करे, और वो उस ग्लव को एक स्टेराइल एरिया पे ड्रॉप कर देगा। अब आपको पहनना है ग्लव। आपने हैंड हाइजीन परफॉर्म कर लिया, हाथ आप धो चुके थे। अब आप देखिए उसमें एक लेफ्ट और एक राइट लिखा हुआ है, और उन्होंने खोला इस तरीके से कि ग्लव सीधे छू नहीं लिया है। ये तो आपका जो पैकेट है इसका ये वाला सरफेस स्टेराइल है। तब कि आपको देखना है कि ग्लव में अंगूठा आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे, क्योंकि आप जब अपना हाथ इंसर्ट करेंगे तो अंगूठे में अंगूठा जाना चाहिए, और उल्टे हाथ वाला उल्टे हाथ में और सीधे हाथ वाला सीधे हाथ में, जो आप अंगूठे से देखते हैं। तो आप देखेंगे कब इन्होंने पकड़ा है, लेकिन ये देखिए सरफेस जो टच की है वो सरफेस जब ये ग्लव को पहन लेंगे तो अंदर चला जाएगा। तो जब ग्लव पहन रहे हैं तो अंगूठा अंगूठे में और उंगलियां उंगलियों में प्रॉपरली डाल लिया है। अब आप देखो कफ को उन्होंने वही छोड़ दिया है, आप देखेंगे क्यों ऐसा किया। दूसरा ग्लव आप देखिए उन्होंने कहाँ से पकड़ा, उन्होंने वो स्टेराइल सरफेस के ही अंदर डाला है, उसको नीचे से नहीं पकड़ा। कि फिर हम अगेन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टेराइल सरफेस को टच करेगी इन्फेक्टेड वाली। इस वाले ग्लव को जब उन्होंने पहना, अब आप देखो इसको उन्होंने सीधा कर दिया, यहाँ पे स्टेराइल सरफेस स्टेराइल को टच। अब आप देखिए जो दूसरा ग्लव है उसका जो कफ है वो कैसे ठीक करना है, तो स्टेराइल फिंगर नीचे डाल के उन्होंने उसको ऊपर खींचा, तो हमारी उंगलियां कभी भी अनस्टेराइल सरफेस के संपर्क में नहीं आएंगी। इससे हमने स्टेरिलिटी को मेंटेन किया है। ठीक है, अब ये पहनने के बाद अगेन हाथों को आपको जब तक आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं वो ना करें तब तक आपको वो हाथ अपने ऊपर रखने, वेस्ट से ऊपर रखने हैं और कहीं
कहीं और इधर उधर टच नहीं करना है। ठीक है, अब हमने वो प्रोसीजर कर किया है जो भी हम करना चाहते थे, तो हाथों ग्लव्स में कुछ कुछ लगा होगा, आपका ब्लड लगा होगा, ग्लूकोज लगा होगा, कुछ लगा होगा, तो आप जो ग्लव्स है उसको ग्लव्ड हैंड के साथ ही हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में उसको रब करेंगे ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, डिकंटामिनेट हो जाए। अब आप देखिए उतारने के तरीका देखिए, उतारने में ऐसे नहीं उतारना कि छिटके चारों तरफ छिट जाए। देखिए ग्लव का जो सरफेस अंदर वाला था वो पकड़ा, उन्होंने अंदर नहीं हाथ डाला, उसके बाद ग्लव का मुट्ठी बना के उसके अंदर से निकाल दिया और उसको हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा हाथ साफ है, अब जो ग्लव वाला हैंड तो ग्लव से पकड़ा, लेकिन अब साफ हाथ है तो स्किन से स्किन पे टच करते हुए ग्लव को वो उतार रहे हैं। अब उस हाथ से ऊपर वाली सरफेस टच नहीं किया उन्होंने और उसको अंदर करते हुए तरीके से उतार दिया है। अब ये दोनों उतारे हुए ग्लव हम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डाल देंगे और अपने हाथों को, जैसा हमने पहले बोला था कि आपको रनिंग सोप एंड वाटर से 60 सेकेंड्स के लिए 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए वॉश करना है। तो ये जो 6 स्टेप्स थे ये आपका डॉनिंग डॉफिंग हो गई। अब हम आते हैं यहाँ से वुंड मैनेजमेंट पे आते हैं। तो मैं आपको स्टेराइल ड्रेसिंग के बारे में वुंड मैनेजमेंट के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वुंड है क्या। वुंड बेसिकली होती है अगर कोई भी ऐसी चोट लग गई जिसमें आपकी स्किन खुल गई, जिसमें स्किन कट गई या खुल गई, तो उसको हम कहते हैं कि आपको घाव हो गया या वुंड हो गया। बहुत अलग तरह के घाव हो सकते हैं, किसी भी तरह से कट सकता है, फट सकता है, किसी चोट की वजह से ये चोट लगी हो सकती है, किसी इम्पैक्ट की वजह से चोट लग सकती है। लेकिन सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वुंड माने जिसमें भी आपका घाव खुला हुआ। यहाँ हम ओपन वुंड की बात ही कर रहे हैं, क्लोज वुंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो एनी लिविंग टिश्यू में अगर कोई भी कट या ग्लो या किसी इम्पैक्ट की वजह से इंजरी हुई तो उसको हमने कहा वुंड। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ वुंड्स हैं, क्या क्या हो सकते हैं। एम्पुटेशन है यानी उंगली कट ही गई है, एवर्जन है कि वहां खाल उखड़ गई है, क्रश इंजरी है कि खाल इंटैक्ट है लेकिन सारा टिश्यू वहां पे क्रश हो गया है। पंक्चर्ड वुंड में आप देखिए कोई भी शार्पनेल घुस गया जिसकी वजह से वो पंक्चर हो सकता है। एब्रेशन है सिर्फ घिसट है, ऊपर ऊपर सिर्फ घिसट लग गई है, वो बहुत कॉमन इंजरी होती है एब्रेशन ही, सबसे ज्यादा घिसट ही लगती है। और तीसरा लैसरेशन है कि एक बहुत किसी धारदार चीज से अगर बहुत तेजी से कट जाता है तो उसको हम लैसरेशन कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड्स हैं, लेकिन हर तरीके की वुंड की ड्रेसिंग की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैनेजमेंट की डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय इतना नहीं है। लेकिन एक बेसिक वुंड की ड्रेसिंग हमें कैसे करनी है यदि वुंड है तो वो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। पंक्चर के बारे में भी यहाँ पे आपको बात करना चाहूंगी। छोटा मोटा पंक्चर किसी चीज से तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट इम्पेल्ड है, कोई भी चीज घुस गई है, बड़ी सी चीज घुस गई, इसको कभी नहीं निकालेंगे क्योंकि जब द मोमेंट आप उस चीज को निकालेंगे वहां से इतनी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी पियर्सिंग इंजरी हुई है उसको कभी भी रिमूव नहीं करना है, उस पेशेंट को एज सच ही आपको शिफ्ट करना है हायर फैसिलिटी पे जहाँ पे वो अंडर ऑब्जर्वेशन सर्जन ही उसको रिमूव करेगा। तो यहाँ हम बहुत बेसिक स्टेप बात करेंगे कि किस तरीके से हमें वुंड्स की ड्रेसिंग करनी है। तो क्यों करनी है, करनी है इसलिए कि वहाँ इन्फेक्शन नहीं हो, कंटेमिनेशन नहीं हो, दूसरा वुंड की हीलिंग फास्ट हो जाए, तीसरा वहां से जो भी डिस्चार्ज है वो उस पट्टी में ही एब्जॉर्ब होता रहे और हम कोई दवा लगा पाए, इसलिए ये करना होता है वुंड की सफाई ताकि जल्दी से हीलिंग हो जाए और मरीज को कोई दर्द भी नहीं हो। अब हमें ड्रेसिंग करते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो वही 6 स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आपको बताई थी वही ध्यान रखनी है, हाथ धोना है, इसके बाद में ग्लव पहनना है और स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए ही आपको ड्रेसिंग करनी है। इसीलिए आपको हमने इन्फेक्शन प्रिवेंशन पे इतना एम्फोसाइज किया था सीधे ड्रेसिंग पे आने की बजाय। और अब सेम इन्फेक्शन प्रिवेंशन का प्रिंसिपल फॉलो करना कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, क्लीन एरिया से डर्टियर एरिया की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो जहां पे भी चोट लगी होगी वो आपका एक बाहर का एरिया और एक बीच का एरिया है। तो हमेशा अंदर से बाहर, क्योंकि बाहर से अंदर आप जाएंगे तो बाहर से आप इन्फेक्शन को अंदर ला रहे हैं, तब भी नहीं ऐसा। क्लीन हमेशा करना है आपको अंदर से बाहर की तरफ। यू हैव टू ऑलवेज मूव फ्रॉम अ क्लीनर टू अ डर्टियर एरिया, नेवर फ्रॉम अ डर्टियर टू अ क्लीनर एरिया, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, यदि वुंड ऐसा है जिसमें आपको इरिगेट करना पड़ रहा है, मतलब उसमें इतना स्लफ जमा हो गया कि आपको उसको साफ करना है, तो आप नॉर्मल सलाइन से उसको साफ करेंगे, लेकिन वो नॉर्मल सलाइन ठंडा नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत गर्म, रूम टेम्परेचर पर या स्लाइटली वार्म हो चलेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और इरिगेंट भी आपको ऐसे ही डालना है कि वो क्लीन से अनक्लीन की तरफ जाए, ऐसे नहीं कि स्किन के ऊपर से डाल रहे हैं वहां से सारी गंदगी लेता हो वो उसके अंदर जा रहा है। सो इट शुड ऑलवेज बी पोर्ड ऑन द वुंड वेयर इट इज, ठीक है।
फिर ये हम स्किप कर सकते हैं। बेसिकली ये है कि सफाई होने के पश्चात ही आपको ये कार्य करना होता है, ठीक है। अब आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए होंगे हमें ड्रेसिंग करने के लिए। आर्टरी फॉर्सेप्स है, सिजर्स है, बोल है, वो मेरे ख्याल से हम वीडियो में देख सकते हैं कि हाउ आर वी डूइंग इट, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रे है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है स्टेराइल फील्ड मेंटेन रखना है, क्योंकि सारी चीजें स्टेराइल है, तो किसी भी स्टेराइल एरिया में अनस्टेराइल चीज कभी भी नहीं रखी जाएगी, अदरवाइज वो पूरी स्टेराइल फील्ड आपकी चली जाएगी। सो दीज आर ऑल स्टेराइल आइटम्स व्हिच आर देयर। तो इसलिए कोई ना कोई एक आपकी मदद के लिए जरूर होगा। उसके बाद देखिए आप स्वाप्स को भी वो आर्टरी फॉर्सेप्स की मदद से उठा रहे हैं ताकि वो इस्तेमाल कर पाए और स्टेरिलिटी मेंटेन करें। आर्टिकल्स और कौन से रिक्वायर्ड हैं, वही क्लीनिंग सोल्यूशन चाहिए आपको, आपको जो भी आपका प्रिस्क्राइब ड्रग है वो चाहिए, चिपकाने के लिए पट्टी चाहिए, आपको स्टेराइल गॉज चाहिए जो उसके ऊपर आप रखेंगे, उसके बाद बैंडेजिंग के लिए आपको बैंडेज चाहिए, किडनी ट्रे, चिटल फॉर्सेप, ये सब हमारी चीजें हैं जो हम उस समय रखते हैं। सो जब हम वुंड की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो पेशेंट कंफर्टेबली बैठा हुआ है, आपने अपने हाथ धो लिए हैं, आपने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं, स्टेराइल ट्रे को ओपन कर लिया गया है, स्टेराइल टॉवल को फैलाने के बाद में उसके ऊपर अब आपने अपना जो हमने आपको बताए थे जो सामान है वो आप रखेंगे। अगर पेशेंट की ऑलरेडी ड्रेसिंग हुई हुई है तो वो आपको रिमूव करनी है, और रिमूव करके उसको अलग से किडनी ट्रे में या रखना है ताकि उसको हम बाद में प्रॉपर्ली डिस्कार्ड कर सकें। फिर आपको देखना है कि वुंड हेल्दी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और उसके बाद में आपको क्लेंजिंग सोल्यूशन जो आपने उसमें आपका जो घोल है उसमें डाला हुआ है, बीटाडीन है जो भी है, उससे आपको वुंड की सफाई करेंगे। अगेन आपके हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं, क्योंकि आप बॉटल से बीटाडीन नहीं डालेंगे, आपको कोई तो जना पोर करके देगा, क्योंकि आपके हाथों की स्टेरिलिटी मेंटेन होनी है। आपने स्टेराइल ग्लव्स पहने हुए हैं इस समय। उस बीटाडीन में अब जो आपके कॉटन बोल्स हैं उनको आपने आर्टरी फॉर्सेप्स की सहायता से पकड़ के वुंड को क्लीन किया, वही अगेन बीच से बाहर की तरफ, सेंटर टू पेरिफेरी, अगेन फ्रॉम क्लीन टू अ डर्टी एरिया। उसके बाद जूस स्वाब को आपने डिस्कार्ड कर दिया, फिर अगेन जो आपकी डर्टी ट्रे है उसमें। उसके बाद क्लीन करने के बाद आपको वुंड को सुखाना है ड्राई स्वाब की मदद से जो कि स्टेराइल है। उसके बाद जो भी उसमें पट्टी मलहम लगाने के लिए दी गई है, जो भी ऑइंटमेंट है वो आप उस पर लगाने के बाद में इसके ऊपर स्टेराइल ड्रेसिंग रखेंगे। जो गॉज पीसेज है वो स्टेराइल है, कभी भी आप कॉटन को डायरेक्टली वुंड के ऊपर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो वुंड के ऊपर चिपक जाएगा। इसलिए स्टेराइल जो आपकी ड्रेसिंग है उसको आप अप्लाई करने के बाद में वुंड के ऊपर, तब आप उसके ऊपर कॉटन पैड रख करके उसके ऊपर चाहे अब आप बैंडेज लगाइए, चाहे आप उसको टेप से सिक्योर कर लीजिए, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा वुंड है। उसके बाद ये सारा प्रोसीजर करने के बाद में आप अपने ग्लव्स को, जैसे हमने बोला, प्रॉपर प्रोसेस से रिमूव करके उनको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करना है। और सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे उन इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करना। फिर अगेन प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन आ गया, क्योंकि आपने वुंड केयर कर दी है, बट वी कैन नॉट जस्ट लीव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक दैट, वी कैन नॉट थ्रो द ड्रेसिंग इधर और उधर, क्योंकि उसी से सब आपका इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो वो आफ्टर केयर में हमें क्या क्या करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वुंड केयर का वीडियो है, हाँ वो हम आपको दिखा देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन आपके लिए हर एस्पेक्ट में काम आएगा। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हमारी हमारी सुरक्षा और मरीजों की सुरक्षा सब हमारी ही जिम्मेदारी है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इन चीजों को अपने दिमाग में रखना है कि हमें किस तरीके से इन सारी जो हमें जानकारी, आवाज आ रही है, इसमें हमने आपको एक आर्टिफिशियल आर्म दिखाया हुआ है जिसपे ऑलरेडी एक ड्रेसिंग है। तो हम देखेंगे हम ड्रेसिंग को रिमूव करके दोबारा ड्रेसिंग कैसे करने जा रहे हैं। तो जब आप पिक्चर देखेंगे, जब रिमूव हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा टेप भी है नीचे, लेकिन वो टेप नहीं है, वो स्किन ही मानी है। हमने वहां पे कोशिश की है कि आपको दिखाएं कि स्टिच लाइन कैसी दिखती है, इसलिए वो लगा है, वो स्किन ही है, वो टेप नहीं है। अब आप यहाँ सामग्री देख सकते हैं क्या क्या है आपकी, आपका टेप है, ये सारे अनस्टेराइल आइटम्स हैं, ठीक है। लोशन है, बीटाडीन है, आपका एवलॉन है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जो भी प्रिस्क्राइब किया उन्होंने, जो भी ऑइंटमेंट लगाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, पाउडर है या ऑइंटमेंट है वो। और आपका बैंडेज हो गया, और नॉर्मल सलाइन का बॉटल भी आप देख रहे हैं वो इसलिए है, यदि वुंड को इरिगेट करना है तो हमें नॉर्मल सलाइन से उसको इरिगेट करना है, ठीक है। इसलिए हमें ये चाहिए हो सकता है, इसलिए ये भी हमारे पास होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कभी भी हम रनिंग अनस्टेराइल वाटर बॉटल के ऊपर नहीं पोर करने वाले हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है जैसे हम जो कर रहे थे। अगर आपको वुंड को क्लीन करना है देन यू हैव टू यूज ए नॉर्मल सलाइन, बिकॉज इस बॉटल में स्टेराइल होता है।
अब आप यहाँ देख रहे हैं आपको स्टेराइल ट्रे दिख रही है जो कि स्टेराइल होकर के आई हुई, ऑटोक्लेव में स्टेराइल होकर आई हुई, जिसके अंदर सारे स्टेराइल है। अब इसको ओपन करना है स्टेराइल को, क्योंकि ये सरफेस तो अनस्टेराइल है, इसलिए स्टील फॉर्सेप की सहायता से आपके जो अटेंडेंट है उसने खोल दिया, अंदर की सरफेस आप टच कर पा रहे हैं बिल्कुल तो अंदर। ठीक है, आप ये स्टेराइल है, आप दूसरा अनस्टेराइल पर्सन नहीं टच करेगा इसको, आपने ये टच किया है। आप देख सकते हो उसमें ट्रे है, बोल है, बॉटल बॉक्स है, जिसमें हम बीटाडीन डालते हैं जिससे हम उसको क्लीन कर सके। डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज है वुंड का, इसलिए एक शीट भी हम रख सकते हैं उसको सेव करने के लिए चारों तरफ, ताकि हम अनक्लीन स्किन के ऊपर टच नहीं करें। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास फॉर्सेप्स है, और पानी जैसे हटाने के लिए फॉर्सेप्स की मदद से हटा सकते हैं, और ये आर्टरी फॉर्सेप है जिससे पकड़ के हम स्किन का काम करेंगे। तो अगर हमें जब हमें ड्रेसिंग रिमूव करना है तो फॉर्सेप की सहायता से पुरानी ड्रेसिंग को हम हटाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो जो हमारा टेप होता है काफी चिपका हुआ होता है कि वो छूट नहीं रहा होता, तो उस स्थिति में हम थोड़ा नॉर्मल सलाइन उसको चारों तरफ डाल सकते हैं ताकि थोड़ी हो जाए और आराम से पट्टी निकल आए। अब आप देखिएगा ये पट्टी को हम वहां नहीं रखते जहाँ ड्रेसिंग कर रहे थे, उसको अलग से हमने किडनी ट्रे में रखा है ताकि हम इसको प्रॉपरली इसको आगे डिस्कार्ड कर सके, ऐसे किसी जनरल डस्टबिन में नहीं, पर्टिकुलरली येलो बैग है जिसमें इसको डिस्कार्ड करना है। हमारा वो व्हाट्सएप भी अनस्टेराइल हो गया, इसलिए हमने उस व्हाट्सएप को भी उसी किडनी ट्रे में रख दिया। आप देख सकते हैं ये हमें वोट दिखाई दे रहा है, इसका हमने हेल्थ देख लिया कि साफ हो रहा है, हेल्थ ये रेडिश आ रहा है कि मेरा सब कुछ अच्छा है, ये वोट हमारा हेल्थ है। तो अब हमें इसकी ड्रेसिंग करनी है। तो अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे जो भी आपके साथ है उसको बोलेंगे कि इसमें बीटाडीन डाल दीजिए, और बीटाडीन भी देखिए दूर से डाल दिया, उसमें टच नहीं करनी है बॉटल। उसके बाद आपने गॉज की जो आपका जो कॉटन बॉल है उसको की सहायता से वुंड को हम साफ करेंगे, और जो वुंड को हम साफ कर रहे हैं, अब आप स्ट्रोक देखिएगा कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, जो हमने बात की थी क्लीन, ऑलवेज मूव फ्रॉम क्लीन टू अनक्लीन। सेंटर से पेरिफेरी में जाएंगे आप, नीचे स्ट्रोक के ऊपर से स्ट्रोक नीचे आए। ठीक है, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लेके बार बार पूछते जा रहे हैं, इसको आपने एक स्ट्रोक दिया डिस्कार्ड, दूसरे स्ट्रोक के लिए दूसरा लिया, उसके बाद डिस्कार्ड किया, तो वापस वापस वो टच नहीं करना है उसी सरफेस को आपको, इसीलिए इतने सारे गॉज पीस, इतने सारे कॉटन बॉल्स चाहिए, सिर्फ एक नहीं। ठीक है? आप देखिए ये अगले स्वाब से उन्होंने उसके किनारे साफ किया है। ठीक है, फिर डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, एंड फिर से अगला उस तरफ साफ कर देंगे एक और स्वाब करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको याद रखने के लिए कि एक स्वाब से एक ही बार क्लीन करना है आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से इस तरफ से भी साफ किया आपने। तो आप देख लीजिए कि साफ हो गया, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए बात कि एक स्वाब से एक ही बार और क्लीन से डर्टी की तरफ, नेवर फ्रॉम डर्टी टू, और एक स्वाब को दोबारा यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बीटाडीन लगी, बहुत गीला वुंड हो गया, तो आप एक ड्राई कॉटन सॉप लेकर के उसको वापस से टैप करके ड्राई कर सकते हैं, या वॉश लेकर के भी उसको ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही आपको प्रिंसिपल फॉलो करना है कि सेंटर टू पेरिफेरी या क्लीन टू डर्टी। आप तो जो भी यूज इक्विपमेंट है वो आप किडनी ट्रे में डालते जा रहे हैं। तो आपने देख लिया, अब इसके बाद आगे हम इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम इस पे आगे ये सारी पट्टी आपको कैसे करनी है, लगा करके गॉश पीस आप उसको वुंड के ऊपर लगा करके जो ऊपर आप बैंडेज लगा देंगे, और उसके बाद आप स्टार्ट कर। ठीक है, तो गॉश पीस लगा। तो ये था आपका वुंड ड्रेसिंग का वीडियो। इसके बाद में जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अनस्टेराइल हो गए हैं उनको आप what do we do? Okay. प्रेजेंटेशन तो भी बची, प्रेजेंटेशन 10 मिनट
तो ये ड्रेसिंग का हमने वीडियो देख लिया। आप के क्वेश्चंस हमारे पास आ गए, बट हम क्विकली आपका ये हम अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके देन वी विल टेक द क्वेश्चंस। तो जब ये ड्रेसिंग कंप्लीट हो गई है तो आपने देखा वुंड हमने ड्रेस कर लिया है। अब उसके बाद हमें आगे का जो स्टेप्स हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन प्रिवेंशन का ही पार्ट है, ये तो बिफोर वाला प्रोसीजर हो गया था। आफ्टर आपने वुंड मैनेजमेंट के बाद में अब आपने क्या करना है, ये हम क्विकली इसको डिस्कस कर लेंगे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर गीतांजलि। तो अभी आपने देखा कि हमने पहले के स्टेप्स को अच्छे से किया, हमने वुंड को टोटली स्टेराइल एंड क्लीन तरीके से मैनेज किया। तो यानी कि अब तक हमारे जो भी एफर्ट्स रहे हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं, और उन सक्सेस को हम आगे भी मतलब बनाए रखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर के बाद इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस क्या हैं जिनका कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो अभी आपने देखा कि हमने वुंड मैनेजमेंट में क्या किया, हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए, और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुआ कि वो जो भी जिस भी पेशेंट के लिए यूज हो रहे थे उसके बॉडी टिश्यूज, उसके ब्लड सिक्रीशन, पस या जिसमें भी है उसके कांटेक्ट में आए हैं, यानी कि वो पोटेंशियली इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स का अब हमें क्या करना है, उनको हमें 4 स्टेप प्रोसेस है कि डिकॉन्टेमिनेट करना है, उसके बाद क्लीन करना है, और उसके बाद या तो स्टेरलाइजेशन करना है या हाई लेवल डिसइंफेक्शन करना है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और उसके बाद हमें उसको स्टोर करना है। तो ये पूरी प्रोसेस है कि हमें कैसे करना। डिकॉन्टेमिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी उसको यूज करते हो तो डिकॉन्टेमिनेशन करना है आपको 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन में। ये जो क्लोरीन सॉल्यूशन है इसमें आपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को 10 मिनट तक डुबाए रखना है। अगर 10 मिनट तक डुबो देते हैं तो हमारा डिकॉन्टेमिनेशन कंप्लीट हो जाता है। इस डिकॉन्टेमिनेशन में क्या होता है कि HIV, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी वायरसेस जो है ना इनइफेक्टिव हो जाते हैं। यानी कि डिकॉन्टेमिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि इसके बाद जो हेल्थ केयर स्टाफ जो फर्दर हैंडल कर रहा है उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हैंडलिंग सेफ हो जाता है, क्योंकि वो तीनों के तीनों वायरस डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डिकॉन्टेमिनेशन के बाद हमने क्या करना है, क्योंकि वो एक केमिकल सॉल्यूशन है, हमने इसको थोरोली वॉश करना है और रिंस कर देना है। और रिंस करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें या तो स्टेराइल कर देना है, विच इज ए प्रेफर्ड मेथड। स्टरलाइजेशन हमने कहाँ करनी है, स्टरलाइजेशन हमने उन प्रोसीजर्स के लिए करनी है जहाँ पे हमने स्किन के नीचे जाना हो, यानी कि हमें कोई सर्जरी करनी है या कहीं कोई ब्रोकन टिश्यूज या म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे नॉर्मल डिलीवरी बाद बहुत सारा रॉ टिश्यू होता है। तो उन केसेस में हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो स्टेराइल होने चाहिए। और बाकी जगह जहाँ हमारी स्किन इंटैक्ट है या जहाँ हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हम हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे हाई लेवल डिसइंफेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए काफी है। अब हमें देखना है कि हम स्टेरलाइजेशन कैसे करेंगे और हाई लेवल डिसइंफेक्शन कैसे करेंगे। स्टेरलाइजेशन का जो हमारा मोस्ट कॉमन जो मेथड हम सब जानते हैं वो ऑटोक्लेव के थ्रू है, कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को डाल के ऑटोक्लेव के अंदर डालते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हम 20 मिनट, अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स रैप्ड नहीं है, कवर नहीं है तो 20 मिनट के लिए, और अगर हमने उसमें रैप किया हुआ तो आधा घंटा कम से कम रखने की जरूरत है। दूसरा एक मेथड है कि आप ड्राई हीट जैसे अवन में आप रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लगभग 170 डिग्री सेंटीग्रेड, और 1 घंटे तक आपको रखने की जरूरत है। तीसरा है केमिकल स्टरलाइजेशन, इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है। जो भी आपके हीट से जो है ना सेंसिटिव आपके जो भी कैथेटर्स हुए या आपके लेरिंगोस्कोप्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है जो जिनको कि आप ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, उनको केमिकल स्टरलाइजेशन से आप स्टरलाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 से 4% ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट को उसमें कंप्लीटली डुबो के रखना है कम से कम
10 से 24 घंटे तक। जब हम इतनी देर तक इंस्ट्रूमेंट को इस सॉल्यूशन में छोड़ देते हैं तो वो स्टरलाइज हो जाते हैं। स्टरलाइजेशन के अलावा हमारा दूसरा मेथड है हाई लेवल डिसइंफेक्शन, जो कि कॉमनली यूज मेथड है, जो हमारे मोस्टली हेल्थ केयर सेटिंग में हम हाई लेवल डिसइंफेक्शन से काम चला सकते हैं। और उस हाई लेवल डिसइंफेक्शन को हमने कैसे अचीव करना है? एक तो ये हो गया कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पानी में डुबो दें, लेकिन कब डुबाएं? जब पानी बॉयल होना शुरू हो। और बॉयल कितना होगा? रोलिंग बॉयल, यानी कि उसके अंदर बहुत तेजी से पानी उबल रहा हो, तब उसके अंदर आप इंस्ट्रूमेंट्स डालें। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट डालें तो कंप्लीटली पानी से कवर होने चाहिए, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होना चाहिए। ढक्कन लगने के बाद कम से कम 20 मिनट तक आपको ये बॉइलिंग करनी है। दूसरा तरीका है केमिकल मेथड, जिसमें हमने बोला था 2 to 4% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन। उसको अगर हम उसी सॉल्यूशन में किसी इंस्ट्रूमेंट को डाल के 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो वो हाई लेवल डिसइंफेक्शन अचीव होता है। और उसके बाद जब ये हमारा इन्फेक्शन हो जाता है, स्टरलाइजेशन हो जाता है, तो हमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को एक स्टेराइल तरीके से उनको स्टोर करना है। अब जहां तक हमने डिकॉन्टेमिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी है कि 0.5% सॉल्यूशन, और ये हमारे वायरसेस को डीएक्टिवेट किल कर देता है। अब जहां तक है कि हमें जानना है कि 0.5% ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनाना है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। समय के अभाव के कारण मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, स्लाइड्स को आप रेफर कर सकते हैं। नीचे देख सकते हैं 0.5% जो लास्ट की लाइन है, उसमें 0.5% हमें ब्लीच सॉल्यूशन बनाना है। और पाउडर हम यूज कर रहे हैं, उसमें क्लोरीन की अवेलेबिलिटी 35% है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 35, और अगर 1 लीटर वाटर में हम बना रहे हैं तो डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो इसमें कितना आया? 50 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। तो इसका मतलब क्या होगा? 1 लीटर ब्लीचिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें लगभग 3 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर यूज करना होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप लोगों की क्वेरी है कि क्या हमें ये प्रेजेंटेशन मिलेंगे। यस, ये प्रेजेंटेशन आपको अभी इस एंड ऑफ वेबिनार पे चैट बॉक्स में ही इसका लिंक आपको भेजा जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। और दूसरा जो पूरा वेबिनार है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, उसका भी हम आपको चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बता देंगे, जो कि NIHRW का यूट्यूब अकाउंट है @NIHRW 2024। तो आप वहां पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय कम है तो हम इसको जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं। तो इसी तरह ये मेथड बताया गया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। उसी तरह आप ब्लीच सॉल्यूशन से भी इसको बना सकते हैं। मान लो हमें वही सेम 0.5% ब्लीच सॉल्यूशन बनाना है, और उस लिक्विड जो ब्लीच आप यूज कर रहे हैं उसमें 5% अगर एक्टिव क्लोरीन है तो क्या करेंगे? 5 डिवाइडेड बाई 0.05, और उससे जो आएगा उसको -1 करके आपका आ जाएगा कि कितने पार्ट आपको करना है। 9 आया तो इसका मतलब 9 पार्ट्स ऑफ वाटर में अगर 1 पार्ट क्लोरीन सॉल्यूशन मिलाते हैं तो आपका 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो दोनों के फॉर्मूला दिए हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आप प्रोडक्ट यूज करें उसके हिसाब से आप अपना क्लोरीन सॉल्यूशन फॉर डीकंटेमिनेशन ऑफ आपके इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर हेल्थ केयर सप्लाईज को जो आपके उसमें यूज हुई है उसको आप डीकंटेमिनेट कर सकते हैं। जब आप डीकंटेमिनेट करते हैं, क्योंकि केमिकल है, आपको उसको क्लीन वाटर से करना है और विद डिटर्जेंट एंड ब्रश। यूजली क्या करना होता है कि आप उसको एक टब में पानी लीजिए, एक ब्रश और डिटर्जेंट से उसको क्लीन करिए, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो बायोलॉजिकल मटेरियल है कई बार इंस्ट्रूमेंट्स के हिंजेस में या कोनों में वो फंसा रह जाता है, तो उसके लिए ब्रश इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए ध्यान रखना है कि पानी की सतह के नीचे ब्रश से क्लीन करिए, पानी की सतह के ऊपर नहीं। अगर पानी की सतह के ऊपर उसको क्लीन करते हैं तो आप उसके छींटे चारों तरफ बिखर सकते हैं, तो क्लीनिंग में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि क्लीनिंग के लिए आपको डिटर्जेंट यूज करना है, क्योंकि पानी खाली से वो क्लीनिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड ग्रीस जो हमारे टिश्यू में हो सकते हैं वो उससे दूर नहीं होंगे। दूसरा, हैंड सोप भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक अपना रेजिड्यू छोड़ सकते हैं। तो हमारे लिए इन शॉर्ट क्या है कि हम डिटर्जेंट्स विद वाटर हम क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करेंगे। उसके बाद स्टरलाइजेशन और HLD के मेथड्स में आपको बता चुकी है। अब हमें समझना है कि स्टरलाइजेशन और हाई लेवल डिसइंफेक्शन में फर्क क्या है। स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, पैरासाइट्स हो, इंक्लूडिंग एंडोस्पोर्स। यूजली क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उनको अनफेवरेबल एनवायरमेंट बनता है तो वो एक अपने आसपास एक कवरिंग बना लेते हैं, ताकि वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं किसी भी केमिकल को के खिलाफ।
तो लेकिन स्टरलाइजेशन में वो एंडोस्पोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये एंडोस्पोर्स आगे जाके फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में तब्दील नहीं हो सकते। तो स्टरलाइजेशन मतलब क्या करती है, आपको टोटली इन्फेक्शन फ्री बना देती है। और हाई लेवल डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि आपके सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन उसमें सब एंडोस्पोर्स किल नहीं होते हैं। तभी ये इम्पोर्टेंट हमें फर्क समझने की जरूरत है कि जहां भी हम स्किन को काट रहे हैं, छेद रहे हैं, या जहाँ पे हमारा टिश्यू को हम अप्रोच करें वहां पे हमें स्टरलाइजेशन करना है। जहां हम स्किन इंटैक्ट है या खाली नीडल से पियर्सिंग हो रही है या आप कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन का कहीं भी, तो वहां पे आपका हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट बहुत मतलब इफेक्टिव है। तो अगर कहीं भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टरलाइजेशन नहीं मिल रहा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगर स्टरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आप हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट को एक ऑप्शन की तरह, स्टरलाइजेशन की तरह यूज कर सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ये वो इक्विपमेंट है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। स्टोरेज की बात है कि आपकी जितनी भी स्टरलाइज आइटम्स हैं वो ड्राई कंडीशन में स्टोर होनी चाहिए, और एक बार जब आप उनको खोलते हैं तो स्टराइल आइटम्स 24 घंटे में के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको दोबारा स्टरलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपने ओपन नहीं किया तो लगभग एक हफ्ते तक आप उसको यूज कर सकते हैं अगर आपने उसको बिल्कुल खोला नहीं है। अब जहां तक कि हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प्स की बात है, हमें पता है कि जो मैक्सिमम रिस्क ऑफ हेल्थ केयर इंजरीज की बात आती है वो शार्प से आती है। वो नीडल्स हो सकती है, वो ब्रोकन वॉयल्स हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि नीडल और सिरिंज को हमने क्या करना है कि एक ही बार यूज करना है, और जब भी उनके साथ हम इनको शार्प्स को हैंडल करें तो हमें यूटिलिटी ग्लव्स के साथ उनको उठाना है। दूसरा है कि जहाँ भी नीडल्स यूज करें हब कटर से उनको काट दिया जाए। नीडल्स और सिरिंजेस को आप पंक्चर प्रूफ कंटेनर में आप इकट्ठा करें, और कभी भी किसी इंजेक्शन या सैंपल लेने के बाद नीडल को ना तो रिकैप करें, ना बेंड करें, ना ब्रेक करें। सो इट इज वेरी वेरी, क्योंकि यूजली इसी प्रोसीजर के दौरान कई बार नीडल प्रिक हो जाता है। और दूसरे लास्ट में इनको बर्न नहीं करना है। तो प्रॉपर हैंडलिंग में अब क्योंकि हमने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देख लिया कि कैसे हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को दोबारा क्लीन, स्टराइल और हाई लेवल डिसइंफेक्ट कर लिया है, ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती जब तक कि हम प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ना प्रैक्टिस करें। इसके लिए मैं डॉक्टर गीतांजलि को हैंड ओवर करती हूँ, आपको स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आपको अवगत कराएंगे। हाँ, हालांकि क्योंकि एक पार्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन का, इसलिए क्विकली हम इसे टच अपॉन कर लेते हैं। जैसे आपने देखा स्टेराइड जब भी हम ड्रेसिंग कर रहे थे तो उसी समय हम सेग्रीगेट करते जा रहे थे। इंपॉर्टेंट है जनरेशन एंड सेग्रीगेशन शुड गो टुगेदर। उसके बाद कलेक्शन एंड स्टोरेज है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल है, क्योंकि द आइडिया इज कि हमें उस जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जनरल वेस्ट में नहीं मिलाना है। अब आप ये पिक्चर देखिए, है ना, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि सब कुछ वहीं एक बकेट में भर दिया गया है और सब जगह इन्फेक्शन है। तो ये तो ना तो पेशेंट के लिए अच्छा है, ना ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, ना ही एनवायरनमेंट और आसपास के लोगों के लिए। तो जनरेशन के समय पे ही आपको, यदि आपने प्रॉपर्ली सेग्रीगेट कर लिया है तो दिस इज द कंडीशन विच कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम सो मेनी इन्फेक्शन। ये जो बेसिक 4 श्रेणियां हैं, ये आपको पता है। पीले में पट्टी, जो भी हमने वहां से जो पट्टी निकाली थी वो सब कुछ पीले में जाएगी, और जो हमने अपने जो ग्लव्स निकाले थे वो जाएंगे रेड में, ठीक है ना। ऐसे ही सफेद में नोकदार वस्तुएं जो आपकी, जो मैम ने बताया शार्प्स हैं, वो उसमें जाएंगी, और नीले में ये आपकी जो कांच और कांच की वस्तुएं जाती है। ये श्रेणियां हैं। ये देखिए, अगर इस तरीके से इनकरेक्टली आपने करेक्ट किया होगा तो कोई भी बेचारा पासर बाई है उसको चुभ जाएगी और उसको इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा। लेकिन आपने प्रॉपर्ली कलेक्टर स्टोरेज किया है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रहे हैं, और एनवायरमेंट को भी और दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। तो इन द एंड हम ये कहना चाहते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी शुड ओन इट। एंड अगेन एंड अगेन हम एम्फसाइज करेंगे, हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको हमें जरूर 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 फॉलो करना चाहिए। और दिमाग में अपने आप ये बेसिक बिठा लीजिए कि किस तरीके से हमें ये इन्फेक्शन प्रिवेंशन के स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो हालांकि काफी लंबा टॉपिक था और समय हो गया है, तो जैसा आपको बता दिया गया, ये पीपीटी एट द एंड ऑफ द वेबिनार आपको चैट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहां पे ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी जाएगी, वहां से भी आप इसको बाद में एक्सेस कर सकते हैं। उसका भी आपको जो हैंडल है वो यूट्यूब अकाउंट का हमारा, वो भी चैट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। एक या दो क्वेश्चंस हैं जो आपके आए हैं, वो हम ले लेते हैं। आप कुछ बात कहना चाहेंगे? एक तो मेथड के बारे में है कि रिस्क को अब स्टेप रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अगर अगर हम उस तरह का ओटीवी कोई प्रोसीजर नहीं कर रहे तो स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि
रिस्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती है। और जहां तक कितना ड्रॉप सोप होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट 10 to 15 ml के आसपास, ताकि ताकि आपके पूरा जो है ना लेदर बन जाए पूरे हाथ पे। ये नहीं हो कि वो जो है ना पूरा जो है ना आपको कवर ना करे। तो यू नीड टू सी कि वो पूरे हाथ को अच्छे से स्मेयर कर सके, तो उतनी क्वांटिटी। तो हम आशा करते हैं कि आप हम इस वेबिनार के माध्यम से आपको कुछ तो एटलीस्ट आपकी जानकारी में वृद्धि कर पाए होंगे। और दूसरा मैं यह ऐड करना चाहूंगी कि हमें अपना माइंडसेट ये नहीं बनाना है कि हमने हेल्थ केयर हमें सिर्फ हेल्थ केयर सेटिंग में देनी है। एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर वी हैव टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड इन द कम्युनिटी। जैसे कि हम इम्यूनाइजेशन हम VHND डे पे करते हैं, तो हमें कम्युनिटी में भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो सकती है। जो हमने बताया वो आइडियल है, लेकिन अगर मान लो हमें सिचुएशन नहीं भी मिलती, जैसे मैंने क्या कहा कि आप किसी ऐसी जगह है कि आपको वो देना है कुछ, तो आपको कुछ नहीं मिलता, मान लो सोप नहीं मिला तो पानी मिल गया, तो पानी से हाथ धो लिए तो एटलीस्ट पार्ट क्लीन हो गए, रादर देन ऐसे गंदे हाथों से छूना। तो इस तरह की चीजें आप सिचुएशन के हिसाब से आप देखेंगे और उस चीज को आप जितना भी हो सके उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर तो हमें इसको पूर्णतः 100% इसको फॉलो करना ही है। क्योंकि अगर हम इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें, पेशेंट की फास्ट रिकवरी, लेस हेल्थ केयर कॉस्ट, लेस बर्डन ऑन द हेल्थ केयर फैसिलिटी, पेशेंट की फास्ट रिकवरी, ये सब चीजें में आप एक सहभागी हो सकते हैं। मैं राजीव जी से रिक्वेस्ट करती हूँ यदि वो Thank you, Dr. Sherawat ma'am and Dr. Gitanjali. Thank you all for connecting and active listening, and we will appreciate your queries or questions. Therefore, please make these session interactive by asking your questions and making comments at the Q&A section or chat box, so that we can further improve these sessions. Tomorrow we have two sessions. One is at 11 a.m. Topic is pre-hospital care and transport. And second one is that at the same time, 5 p.m. onwards, burn management. You will receive link shortly. At the end, I would like to thank Sri Puspendra Rajput, Director NHFW, Ms. Nidhi Kesarwani, Deputy Director, Professor V.K. Tiwari, Dean, Dr. Rajesh Kumar, NO Admin, and today's speaker, Dr. Renu Sarawat and Dr. Gitanjali Singh. Also like to thank team behind this webinar series, Dr. Manish Chaturvedi, Dr. Rajesh Ranjan, Dr. D.K. Yadav, and all NHFW family members. Thank you all for connecting. And again, we'll see you tomorrow morning in our third session. Thank you all. Thank you, ma'am. And thank you, Project Eco team. And now you can end the session. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. So we are closing the session now. Thank you so much. And thanks to all the participants for joining today's very, very essential session. Thank you so much, everyone.